क्लॉजेस ते फ्रेजेस हरेक सेंटेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ने। आपां कोई भी सेंटेंस इन्हां तो बिना बना नहीं सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एकस लर्निंग। So today in this video we are going to talk about clauses and phrases. And in this video you will learn the meaning of a clause and a phrase and what is the difference between a clause and a phrase. So in order to learn about the details of clauses and phrases, watch my whole video. So सब तो पहला ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि clause ਦਾ meaning ਕੀ ਹੈ। So a clause is a collection of words that has its own subject and makes a clear meaning. A sentence may have one or more clauses in it. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੌਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੌਜ਼ਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੋਹਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਹੈਰੀ ਸੈਂਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੈਂਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, we enjoyed the party। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ we ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ enjoyed the party। so it means ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਆ ਡਾਂਸਡ ਐਂਡ ਮੈਰੀ ਸੈਂਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਰੀਆ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੌਜ਼ਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਲੌਜ਼ਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਲੌਜ਼ਸ ਦੋ ਨੇ। ਕਲੌਜ਼ਸ ਦੋ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਲੌਜ਼ਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਕਲੌਜ਼ਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਲੌਜ਼ਸ ਕਿ ਕਲੌਜ਼ਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਨੇ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। The clause which has independent meaning in itself and if other part of the sentence is removed it doesn't affect its meaning। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ clause ਜਾਂ main clause ਜਾਂ independent clause ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? The clause which is dependent upon the main clause for its complete sense। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ
इंडिपेंडेंट क्लॉज के उपर निर्भर होंदी है, क्योंकि आंदा अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलदा हुंदा। इस करके कंप्लीट मीनिंग कढण वास्ते इनू इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाल जुड़ना पैंदा। ते ये दो तरह दी क्लॉजेस हुंदियां ने। अगे आपां हुण इन्हां नूं एग्जांपल्स दे विच चंगी तरह समझांगे। जिवें पहली एग्जांपल दित्ती हुई है, आई सॉ अ चाइल्ड हू वाज क्राइंग। हुण इहदे विच दो सबजैक्ट दित्ते ने, जिवें आई ते हू। इट मीनस कि इहदे विच दो क्लॉजेस ने। जिन्ने ज़्यादा सबजैक्ट ने उन्नियां ज़्यादा क्लॉजेस ने। किसी विच दो भी हो सकते हैं, किसी विच तीन भी हो सकते हैं। हुण इहदे विच दो सबजैक्ट, इस करके पता लग गया कि दो क्लॉजेस ने। हुण इन्हां विचों एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ते एक डिपेंडेंट क्लॉज है। हुण किवें पता लगेगा कि जिंदा कंप्लीट मीनिंग निकलता अपने आप दे विच वो इंडिपेंडेंट है, ते जिंदा कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता वो डिपेंडेंट है। हुण इहदे विच आई सॉ अ चाइल्ड एक मेन क्लॉज है, क्योंकि इहदा अपना कंप्लीट मीनिंग निकलता है। मैं एक बच्चा वेख्या, हुण इहदा मीनिंग निकलता है। जेकर आपां दूजे पार्ट की गल करिए, हू वाज क्राइंग, जो कि रो रहा सी। हुण जो कि रो रहा सी, हुण ये अपने मीनिंग वास्ते ये मेन क्लॉज के उपर डिपेंडेंट है। इसे करके ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या इनू आपां डिपेंडेंट क्लॉज भी कह दिंदे आ। दूजी एग्जांपल है, आई एक्सपैक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। हुण इहदे विच भी दो सबजैक्ट ने, आई ते दोबारा फिर एक आई आया, दो बारी सबजैक्ट आए। हुण इट मीनस कि इहदे विच दो क्लॉजेस ने। हुण फिर इहदे विच एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। हुण इहदे विच आई एक्सपैक्ट, मैं ये आस करदा हां। हुण इहदा एक कंप्लीट मीनिंग निकलदा है, इस करके ये मेन क्लॉज हो गई या इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। दैट आई शैल गेट अ प्राइज, कि मैनू इनाम मिले। हुण कि मैनू इनाम मिले दा अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलदा। कंप्लीट मीनिंग कढण वास्ते ये मेन क्लॉज मीनस आई एक्सपैक्ट के उपर ये डिपेंडेंट है। इसे करके इनू आपां डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कह दिंदे आ। तां मेनली एक चीज़ देख लिया जे कि जिहड़ी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, ये हू, विच, वैन, वेयर इहो जे शब्दां तो शुरू होंदियां ने। तां उत्थों पता लग जाता है कि यह डिपेंडेंट क्लॉज है। क्लॉज का मीनिंग जानने तो बाद हुण आपां देखांगे कि फ्रेज का मीनिंग की है। तां इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव नो सब्जेक्ट, इट डजंट मेक अ क्लीयर मीनिंग। तां एक वर्ड्स का एक ग्रुप है जिन्हां दा अपना कोई क्लीयर मीनिंग नहीं निकलता। ठीक है, ते इनदा विच कोई सब्जेक्ट भी नहीं हुंदा। एक सब्जेक्टलैस हुंदा है फ्रेज, कोई सब्जेक्ट नहीं हुंदा, ना ही इनदा कोई क्लीयर मीनिंग निकलता है। तां उहनूं आपां एक फ्रेज कह दिंदे आ। हुण इत्थे तुसीं देखो कि आपां क्लॉज बारे जिहड़ी गल कीती सी, क्लॉज दे विच एक सब्जेक्ट हुंदा है, उनका अपना एक सब्जेक्ट हुंदा है। उत्थों पता लग जाता कि एक क्लॉज है। पर फ्रेज दे विच अपना कोई भी सब्जेक्ट नहीं होएगा, तो इनका कोई भी मीनिंग जे सब्जेक्ट ही नहीं है, इट मीनस कि उनका क्लीयर मीनिंग नहीं निकलेगा। हुण अगे आपां कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेजेस दियां। जिवें ही वाज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। हुण इहदे विच सेंटेंस दे विच ही जिहड़ा है वो सब्जेक्ट है। इट मीनस कि जिहड़ा फर्स्ट पार्ट है वो एक क्लॉज है, ते जिहड़ा सैकेंड पार्ट है ऑफ ग्रेट वेल्थ ये एक फ्रेज है। क्योंकि इस फ्रेज दे विच तुसीं देख लो ऑफ ग्रेट वेल्थ, इनका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ते ना ही इनका प्रॉपर मीनिंग निकलता पिया, क्योंकि सब्जेक्ट दे नाल ही इनका प्रॉपर मीनिंग निकलेगा। इस करके एक फ्रेज है। सैकेंड एग्जांपल देखते हैं। द चीफ लिव्ड इन अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। हुण इस सेंटेंस दे विच भी द चीफ जिहदे बारे गल कीती गई है, तां ये एक सब्जेक्ट है। इट मीनस कि ये एक होगी क्लॉज, क्योंकि उनका सब्जेक्ट है। पर दूजा पार्ट बिल्ट ऑफ स्टोन, हुण ये एक फ्रेज है बिल्ट ऑफ स्टोन, क्योंकि इनका कोई भी अपना मीनिंग नहीं निकलता,
ना ही इहदा कोई सबजैक्ट है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द एरो फैल ऑन दिस स्पॉट। हुण द एरो फैल, इहदे विच द एरो एक सबजैक्ट है, पर दूजे पासे जे आपां गल करिए ऑन दिस स्पॉट, इहदे विच कोई भी सबजैक्ट नहीं हैगा। इट मीनस कि जिहड़ा फर्स्ट पार्ट है वो क्लॉज है, सैकेंड पार्ट है वो फ्रेज है। सो मेन डिफरेंस इहदे विच यही है कि क्लॉज दा अपना एक सबजैक्ट हुंदा है, पर फ्रेज दा अपना कोई भी सबजैक्ट नहीं होता। To know about clauses and phrases in a more detailed manner, now we will do an exercise regarding clauses and phrases. So first sentence है in the garden। तुसी इहदे विच ये लभना कि एक क्लॉज है या एक फ्रेज है। अगर क्लॉज है तो एक किहड़ी क्लॉज है, मेन क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। हुण इस सेंटेंस विच इन द गार्डन, इहदा कोई भी सबजैक्ट नहीं है। गार्डन विच इहदा ना तां इहदा कोई मीनिंग निकल रहा है। इट मीनस कि एक फ्रेज है। सैकेंड है वाइल चार्ली वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। हुण इहदे विच आपां जे गल करिए सबजैक्ट दी, तां इस सेंटेंस दे विच चार्ली एक सबजैक्ट दिता होया, तां इट मीनस कि एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इहदे अगे एक पार्ट सेंटेंस दा होर लगेगा जिहदे नाल इहदा कंप्लीट मीनिंग निकलेगा। जिवें वाइल चार्ली वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, जदों चार्ली न्यूज़पेपर पढ़ रहा सी। हुण इस तो पहला किसी होर घटना का जिक्र किया गया होगा जो कि इहदे विच नहीं दिता गया, इस करके एक डिपेंडेंट क्लॉज है। थर्ड है जेम्स वर्क्स एट अ रेस्टोरेंट। हुण इस सेंटेंस दे विच जेम्स एक सबजैक्ट है ते इस सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है। इट मीनस कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने मीनिंग के वास्ते। नेक्स्ट एग्जांपल है द बिग ग्रीन बॉक्स। हुण द बिग ग्रीन बॉक्स, इहदे विच कोई भी सबजैक्ट नहीं हैगा, इस करके एक फ्रेज है। नेक्स्ट है वी डोंट लिव इन मैनचेस्टर एनीमोर। हुण इहदे विच भी तुसीं देखो कि एक सबजैक्ट दिता गया है जिन्हों जिहड़ा कि हैगा वी, इस करके ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इहदा अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग निकल रहा है। हुण तुहानूं कोई सेंटेंसेस दिते जाणगे, तुसीं उस सेंटेंस विच लभना है कि इहदे विच क्लॉज किहड़ी है ते इहदे विच फ्रेज किहड़ी है। हुण फर्स्ट सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट। हुण इहदे विच तुसीं कोशिश करो कि क्लॉज लभण दी ते फ्रेज लभण दी। हुण इहदे विच द सन राइजेस ते एक पार्ट हैगा इन द ईस्ट। सो फर्स्ट पार्ट हैगा क्लॉज ते सैकेंड पार्ट हैगा फ्रेज। द सन राइजेस एक क्लॉज है, क्योंकि इहदे विच सबजैक्ट हैगा द सन। दूजे पासे इन द ईस्ट, इहदे विच कोई भी सबजैक्ट नहीं हैगा ते इहदा अपना प्रॉपर मीनिंग भी नहीं निकलता पिया, इस करके यह एक फ्रेज है। सैकेंड आपां देखते हैं द ट्रेन स्टॉप्ड एट विक्टोरिया टर्मिनस। हुण इहदे विचों कोशिश करो लभण दी कि क्लॉज किहड़ी हो सकती है ते फ्रेज किहड़ी हो सकती है। तां द ट्रेन स्टॉप्ड एक पार्ट है ते दूजा पार्ट हैगा एट विक्टोरिया टर्मिनस। सो फर्स्ट पार्ट हैगा क्लॉज ते सैकेंड पार्ट एट विक्टोरिया टर्मिनस एक फ्रेज है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट दे विच द ट्रेन एक सबजैक्ट है, दूजे पासे एट विक्टोरिया टर्मिनस इनका कोई भी सबजैक्ट नहीं है, इस करके एक फ्रेज है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं दे वर शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस। हुण इहदे विच दे वर शाउटिंग ये फर्स्ट पार्ट है, इन अ लाउड वॉइस एक सैकेंड पार्ट है। तां फर्स्ट पार्ट इहदे विच जिहड़ा हो गया वो क्लॉज है, सैकेंड पार्ट फ्रेज है। दे वर शाउटिंग क्लॉज है क्योंकि इहदे विच जिहड़ा सबजैक्ट है वो हैगा दे, ते सैकेंड जिहड़ा हैगा इन अ लाउड वॉइस। हुण इहदे विच कोई भी
ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਨ, ਐਟ, ਔਨ, ਅਪੌਨ, ਇਨਟੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਨ ਦਾ ਆਰਟ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਬਰਡ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਯੂ ਨੀਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ ਕਿਹੜੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦਾ ਆਰਟ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਬਰਡ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਯੂ ਨੀਡ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਰੇਜ਼, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਕਲੌਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਲੌਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੇਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਯੂ ਨੀਡ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ ਦਾ ਆਰਟ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਬਰਡ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਵਿਦ ਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਵਿਦ ਕੇਅਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਕਲੌਜ਼, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਫਰੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਕੇਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ। And I hope that now you have understood the meaning of clause and phrase in a detailed manner. And if you like this video, please leave your comments on this video and also share this video with your friends so that they can also know about clause and phrase. And also subscribe my channel Ekas Learning so that you will also get the new updates regarding my new videos. Thank you to all.